First of all, a very good morning to all students. In today's class, we all are going to complete the very important, very moral related poem, The Ant and the Cricket. From your book, Honeydew, poem number 1. After the chapter 1, The Best Christmas Present, The Ant and the Cricket. So, we will see the land explanation of this poem today class, and first we will discuss its title, The Ant and the Cricket, as you can see. But on the other hand, they both are representing some other qualities, some other specialties of two kinds of human being. One is hardworking and one is lazy. So we will see, first we will read the poem, we will get the meaning of the poem, then we will ultimately find this point of view. Now let's start the poem. First, I give you a little introduction of this poem. As we can see, The Ant and the Cricket. This poem is a fable. Okay, fable is a kind of literary form. Okay, literary form like stories, novel, drama, and fable is also a literary form. Fable means a traditional short story that teaches moral lesson and whose characters are animals. Okay, traditional short story and teach moral lesson, very important, moral lesson teach, and whose characters are animals. Now the intro of this poem is the cricket was young and silly. Okay, was young and silly, and he was fun loving, used to make merry. He was very lazy, fun loving, used to singing, used to dancing all the time, and enjoying his life. And Ant is very hardworking. Ant storing food for the coming seasons, coming rainy seasons, rainy and winter seasons. Okay, and cricket in summer and in springtime, cricket only sing, enjoy life. He did not take care about future time, food for future. And but Ant here very hardworking. She store food for coming rainy and winter season. Okay, and what happened with the cricket when he had no food at the time of winter season, at the time of rainy season, then he go to Ant, and what will Ant do, we will see in this explanation. Now, fable is a story often with animals. I'm reading from here. Okay, students. A fable is a story, often with animals as character, that conveys a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. Okay. पहले मैं आपको उसका मीनिंग बता दूँ. जस्ट इज अ मीनिंग. फेबल इज़ अ स्टोरी. ओके, एनिमल एंड कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें एनिमल्स ही कैरेक्टर होते हैं. क्रिकेट और आंट इसमें कैरेक्टर हैं. विच दैट कन्वेज अ मोरल, जो हमको एक मोरल दे के जाएंगे, एक शिक्षा दे के जाएंगे, एक सबक दे के जाएंगे. दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट, ये पोएम है आंट और क्रिकेट के बारे में. कंटेन्स एन आइडिया फार रीचिंग. देखिए ये इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कीजिए दिस वर्ड, फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. दूरदृष्टि के जो महत्व होते हैं, जो फ़ायदे होते हैं, आगे के सोचना है, लोग सोचते हैं, उसको लेके चलते हैं. ठीक है, तो वो बताया गया है इसमें एक आइडिया. विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ फोर लेग क्रिकेट. ठीक है, और किस तरह से फोर लेग क्रिकेट को क्या मिलता है जब वो ऐसा नहीं सोचता है आगे का. एंड ऑफ अ टू लेग वन. तो आप बता सकते हैं टू लेग वन किसके लिए बोला गया है. टू लेग वन बोला गया है ह्यूमन के लिए, इंसानों के लिए. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग. वो कहते हैं, पोएट इज सेइंग हियर दैट श्योरली आपने ऐसा भी क्रिकेट देखा होगा जिसके टू लेग हैं. मीन्स ऐसे भी इंसान देखे होंगे जो कि ऐसे होते हैं, भविष्य का ना सोच के प्रेजेंट में ही अपने आप को बर्बाद करते हैं, हार्डवर्क नहीं करते, टाइम का आगे का नहीं सोचते हैं. एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट पोएम.
from line by line. Okay. First stanza. A silly young cricket accustomed to sing. Here, just underline the important words also. Accustomed means habitual, used to. एक silly young cricket है, ठीक है. टू सिंग, अकस्टम्ड माने उसकी हैबिट है, उसकी आदत है. टू सिंग गाना गाने की. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. कब गाना गाता है वो? पूरे महीने जब क्या होता है, वार्म मीन्स गर्म होता है वेदर, सनी यानी धूप निकली हुई है बहुत. कब कब होता है ऐसा? मंथ ऑफ द गे समर एंड स्प्रिंग. समर का सीज़न होता है एंड स्प्रिंग सीज़न होता है. एंड गे मीन्स होता है वेरी चेयरफुल, वेरी हैप्पीनेस का सीज़न. ओके. बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड एट होम. पहले तो वही क्रिकेट अभी सिंगिंग कर रहा है, बट फिर वो स्टार्ट करते. बिगिन मीन्स टू स्टार्ट, कंप्लेन करना. व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम. फिर वो जैसे ही विंटर आती है वो कंप्लेन करना शुरू कर देता है. जब वो देखता है, पाता है, फाउंड अपने घर में क्या, कि उसका कबोर्ड खाली है, उसकी अलमीरा, कबोर्ड मीन्स अलमीरा कैसी है? एम्प्टी है. नॉट अ क्रम टू बी फाउंड. क्रम, अंडरलाइन दिस वर्ड क्रम. क्रम मीन्स पीस ऑफ ब्रेड या रोटी का टुकड़ा. नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. क्यों? पूरे समर, starting two lines, okay, full summer what he was doing, only singing and enjoying. okay, but now winter has come. अब winter आ गई है तो वो कह रहा है कि उसके पास तो कुछ नहीं. not a single piece of bread on the snow covered ground. snow covered ground means अब winter आ गई है तो पूरा ground snow से covered है. not a flower could he see. एक भी फ्लावर उसको दिखाई नहीं दे रहा है. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. नॉट अ सिंगल लीफ. ट्रीज पर कोई लीफ नहीं है. इतनी डेंजर विंटर आ गई है. देखिए, here you can see the condition what cricket is doing in summer season and what ant is doing in summer season. okay, cricket only singing, enjoying that cheerfulness, that is happy season, but here ant is very hard working and storing food for coming winter, for coming rainy season. Now what happened, let's see. Now cricket says, oh, last line, please see the last line. Oh, what will become, say the cricket, of me. Now cricket is saying what will happen with him. उसके साथ क्या होगा अब? खाने को नहीं. Okay, now what he did, देखते. At last by starvation and famine made bold. Underline the word starvation and famine. Starvation means dying of extreme hunger, बिल्कुल भूख से मरने की स्थिति. एंड फेमाइन मीन्स वेरी क्रिटिकल टाइम, वेरी वेरी क्रिटिकल टाइम. इन वी कैन से अकाल, सूख, जैसे अकाल आ जाता है, खाने को नहीं. लाइक एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड. फाइनली जब बिल्कुल ऐसी स्थिति आ गई, भूख से मरने की, और फेमाइन आ गया, उसके ऊपर अकाल पड़ गया, उस चीज, इस कंडीशन ने उसको कैसा बना दिया? बोल्ड बना दिया. मेड बोल्ड. क्या, किस लिए, क्या करेगा वो बोल्ड बन के? वो जाएगा आंट के पास. Made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Okay, all dripping with wet and all trembling with cold, because it is just now, which season has come? Now winter has come. And what is happening with cricket, that he is fully wet. भीग गया है वो, पानी में भीगा हुआ है. एंड क्यों पानी कहाँ है आप सोचेंगे? ड्रिपिंग मीन्स होता है दैट बूंदें, जो ओस की बूंदें आ जाती हैं सर्दियों में, उससे वेट, उससे भीग गए. एंड ऑल ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड. कोल्ड से ट्रैम्बल कर रहा है वो, शिवर हो रहा है, काँप रहा है. अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली आंट. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज हियर, मिजरली. सेट ऑफ मीन्स गया वो, जाने उस रास्ते पर गया. कहाँ? आंट के पास, हिम्मत करके. मिजरली आंट, मिजरली आंट मीन्स, मिजरली मीन्स वेरी कंजूस, नहीं कुछ देने वाला. टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट. ये देखने के लिए, टू कीप हिम अलाइव, अपने आप को अलाइव रखने के लिए, कि किसी तरह वो जीवित बच जाए. ही वुड ग्रांट. ग्रांट मतलब उसको कुछ दे दिया जाए. किस तरफ से? आंट की तरफ से.
उसको क्या दे दिया जाए, ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, उसको शेल्टर दे दी जाए। देखिए उसको शेल्टर भी चाहिए, उसने घर भी नहीं, उसके पास कुछ करा ही नहीं उसने। दिस इज द कंडीशन ऑफ एक्चुअल क्रिकेट। ओके, ही इज शिवरिंग, वेट, भीगा हुआ है, शिवर है, कांप रहा है विथ कोल्डनेस एंड फुल्ली हंगरी है बहुत ज़्यादा। और वो गया है आंट के पास कि किस तरह से अपने आप को वो टू कीप हिम अलाइव, किस तरह से अपने को अलाइव रखे। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर, उसको शेल्टर चाहिए फ्रॉम रेन एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, ग्रेन भी चाहिए उसे, राइस, व्हीट काइंड ऑफ पल्सेस, ये सब उसको चाहिए। He wished only to borrow, he had repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Very important. Now he goes to aunt to ask shelter, to ask food and to ask help finally. और वो क्या विश कर रहा है, हमारे जो क्रिकेट है वो ये विश कर रहा है ओनली टू बोरो करना है उससे, मांग नहीं रहा है। टू टेक ओनली, टू जस्ट टेकिंग, उधार ले रहा है उसको। ओके, एंड ही हैड रीपे इट टुमारो, ये भी कह रहा है कि वो रीपे कर देगा कल यानी आने वाले समय में वो इसको रीपे कर देगा। जो भी आंट से हेल्प लेगा, फूड, शेल्टर एंड फाइनली जो हेल्प लेगा उसको वो रीपे कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर ऐसी हेल्प उसे नहीं मिलती है तो वो मस्ट, अवश्य ही, जल्दी, ज़रूर ही वो स्टारवेशन यानी भूख से और दुख से क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, मर जाएगा। Important words like starvation. Okay, mouthful means little, a little, not big. Okay, little grain, little food, and here miserly, trembling, dripping, starvation, famine, these all are important ones. And apart from this, what you find, you also can write this. Now next stanza. Says the aunt to the cricket, I am your servant and friend. Now here we will see the answers of aunt. How will aunt deal with him? Okay, अब aunt कैसे deal करेगी हमारे क्रिकेट को? Say the aunt to the cricket. aunt ने क्या क्या, I am your servant and friend, मैं आपकी servant हूँ, friend हूँ, but we aunt never borrow, we aunts never lend. Very important thing is this. कहते हैं कि हम जो aunts हैं never borrow, हम कभी उधार देते नहीं हैं, we aunt never lend, ना ही उधार लेते हैं। Very important thing, to give or not to take. But tell me dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? But please मुझे बताइए dear cricket, did you lay nothing by? ठीक है, lay by means lay and by means to store, to save food. शी इज़ आस्किंग अबाउट कि वो कहती है तुमने सच में कुछ भी स्टोर नहीं किया। व्हेन द वेदर वॉज वॉर्म यानी गर्मियाँ थी, जब समर था, जब वेदर था, समर था, तुमने उस समय कुछ भी नहीं किया। कोथ द क्रिकेट, कोथ मीन्स टू सैड द क्रिकेट ने बोला नॉट, मैंने ऐसा नहीं किया। अब क्रिकेट अपनी कंडीशन बताएंगे कि वो क्या कर रहे थे। वो एक्सक्यूज़ देगा कि मैं ये कर रहा था तो मैं ऐसा खाना नहीं इकट्ठा कर पाया, मैं घर नहीं बना पाया, लाइक दिस। माई हार्ट वाज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, ये क्रिकेट की लाइन्स हैं, ऊपर की दो लाइन है। माई हार्ट वाज सो लाइट, मेरा हार्ट जो है बहुत हैप्पी था। लाइट हियर इज मीनिंग ऑफ लाइट इज़ हैप्पीनेस, मेरा दिल बहुत खुश था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मैं दिन और रात गाना ही गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, मुझे सारी की सारी नेचर, चारों तरफ का माहौल, सारा एटमॉस्फेयर फुल ऑफ नेचर लुक्ड गे मीन्स वेरी हैप्पी, वेरी एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो उसको सारे नेचर, आसपास का फुल प्रकृति खुश दिखाई देती थी। यू सैंग सर, नाउ दिस लाइन इज बाय आंट। आंट सेज यू सैंग सर, आप गाना गा रहे थे। गो देन, जाइए। सिट आंट एंड डांस द विंटर अवे, अब पूरी विंटर आप डांस करिए। ठीक है, ये आंसर है हमारी आंट का कि अच्छा तो आप गाना गा रहे थे पूरे समर, अब जाओ पूरी विंटर डांस करो। दस एंडिंग ही हैस्टिटी लिफ्टेड द विकेट, दस लास्ट में ही हैस्टिटी, ही यहाँ पर क्रिकेट हमारा, हैस्टिटी मीन्स वेरी क्विकली, जल्दी से, लिफ्टेड द विकेट, विकेट मीन्स होता है स्मॉल डोर,
स्मॉल डोर, वो गया स्मॉल डोर के पास जो कि क्रिकेट आंट का था, उसको लिफ्ट किया खोल के, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, बाहर वो डोर से बाहर निकाल दिया गया. Now, last two lines are very important. It is saying the moral of the poem. Fox call this a fable. Fox means people. People. Fox call this a fable. लोग कहेंगे कि ये फेवल है. I will warrant it true. और मैं आपको वारंटी देता हूँ. Poet is saying here that yes, yes सच है, बिल्कुल फेवल ही है इसमें, क्योंकि मोरल है, बहुत इंपॉर्टेंट मोरल है. सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2. कुछ क्रिकेट्स के 4 leg होते हैं, जो कि स्टोरी में हमारे जो क्रिकेट है उसके 4 leg है, बट सम हैव 2. किसके लिए कह रहे हैं? इंसानों के लिए जो कि मेहनत नहीं करते हैं. अडेप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फेबल. एसॉप्स के जो फेबल्स हैं वहाँ से ये पोएम आपकी अडॉप्ट की गई है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये you enjoy this poem a lot and get the meaning fully of this poem. Thank you for watching this poem and be happy, stay safe, stay healthy. Goodbye.